Before starting the class, let's begin the prayers of Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tashmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharane निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So Hare Krishna to all of you. So in this Kartik month, all of you are doing very well. Your spiritual activities along with your material activities. So hope you all are doing very well. And gradually we are moving to the end of this Kartik month, right? So after some this Diwali is coming, and this just next day of Diwali is Govardhan Puja is also coming. And like as in the beginning, I informed you all here. mm, As compared to Diwali, we celebrate Govardhan Puja in a very gorgeous way, right? So I'm inviting you to all of you on behalf of ISKCON Bhubaneswar to this Govardhan Puja, which we are going to celebrate on 2nd November, that is the Saturday. So those who are in Bhubaneswar or near Bhubaneswar, they can come and uh, take part in this great celebration, great festival. And you can see that like how we celebrate this Govardhan Puja in a very gorgeous way. So because Giriraj Govardhan is not different but Krishna himself. Mm. So as all of you know that Govardhan Leela, so I'm not going to tell that story. All of you know very well. But today we are going to discuss something very special thing. Uh, like as Kartik month is going on, so like as informed in the group also, the purpose of Kartik month is to go more closer to Lord Damodar, Lord Krishna, mm, and more fixed up in your bhakti, sadhana bhakti, and devotional service. So, what are the ways so that we can go more closer to Krishna or Lord Damodar and more fixed up in Krishna consciousness? So, the ways you all are already doing every day, right? Like chanting in the morning, offering lamp to Lord Damodar, reading some slokas from Bhagavad Gita, some important slokas, and some lecture hearing also you all are doing. And you all are following for regulatory principles also, and other activities also you are doing. So these activities, if you will do these activities with sincerely, then of course, very soon you will be very close to Lord Damodar, and you will become fixed up in Krishna consciousness. So regarding this, so how can become more closer to Krishna? How become more fixed up in Krishna consciousness? So that even when some disturbances, some little challenges will come in our life, we will not be disturbed. Mm. So, so I have choose some the topic for today's session as like topic is already mentioned. What is the root cause of suffering in this material world? Uh, Forgetfulness of Krishna. So we have forgotten Krishna, so that's why we are suffering. Mm. Okay, now it's coming. So okay, so this is the song actually in our Vaishnav songs, Bhuliya Tumhare. So written by the Srila Bhakti Vinod Thakur.
So we will discuss this song. Bhuliya Tumhari means now we have like as a topic, the name of topic is why we are suffering this material world because of forgetfulness of Krishna. We have forgotten Krishna. So this Vaishnava song is written in Bengali. Srila Bhakti Vinod Thakur, one of our Acharya of Gaudiya Sampradaya. है ना? So Srila Bhakti Vinod Thakur is the father of Srila Prabhupada's spiritual master, Srila Prabhupada's spiritual master, है ना? तो Srila Prabhupada's spiritual master is who? Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, and Bhakti Vinod Thakur is his father, है ना? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जो पिताजी हैं उनका नाम है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने बहुत सारे एक्चुअली वैष्णव सॉन्ग लिखे हैं, है ना? तो और आप देखेंगे जो हमारे मायापुर में, है ना, मायापुर में जो टीओबीपी विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर बनने जा रहा है, राइट, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटरियम, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर ने ही, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने सबसे पहले अपने विजन में देखा था, है कि ये जो है, ये टेम्पल जो है आगे मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा मंदिर होगा और पूरी दुनिया से सारे लोग आएंगे और कृष्ण भक्ति को ग्रहण करेंगे, राइट। सो एक वैष्णव सॉन्ग आज हम ले रहे हैं, भूलिया तुम्हारे, मतलब भूलिया मतलब भूल गए हैं। किसको भूल गए हैं? तुम्हारे, मतलब आपको हम भूल गए हैं। तो आपको भूलने से अभी क्या हम दुख पा रहे हैं इस भौतिक जगत में, वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये वैष्णव सॉन्ग है, तो पहला इसमें बता रहे हैं, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, लास्ट में फिर इसको हम गाएंगे, ठीक है ना। अभी इसको मैं आपको पढ़ के और आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर लास्ट में इसको हम गा सकते हैं। तो भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विधा व्यथा। तो बता रहे हैं कि ये कब का चर्चा हो रहा है? ये चर्चा हो रहा है मतलब कि जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में जब आ गया है, तब आने के बाद जब उसको बहुत सारे कष्ट मिल रहे हैं इस भौतिक जगत में, तब फिर वो जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है ना। भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है, क्या बोल रहा है? जीवात्मा। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? ये जीवात्मा बोल रहा है, ये हम जीवात्मा मतलब हम बोल रहे हैं, है ना। तो मतलब हम सबको माध्यम बनाकर ये कौन बोल रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, राइट। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि भूलिया तुम्हारे, आपको भूल गए हैं, संसार आसिया, और इस भौतिक जगत में हम आ गए हैं। तो इस भौतिक जगत में आ गए हैं, इसका मतलब क्या है कि वास्तव में हम इस भौतिक जगत के नहीं है, हम किसी और जगत में थे, वहां से इस जगत में आ गए हैं। पे नाना विधा व्यथा, और इस जगत में आकर के अभी क्या हो रहा है? नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के क्या कर रहे हैं? व्यथा मतलब कष्ट हम पा रहे हैं, है ना। तो कौन कौन से कष्ट हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। सो दीज आर दी 4 रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जो कि हम में से हर व्यक्ति इसको क्या कर रहा है? सफर कर रहा है ना, अलग अलग प्रकार के डिजीज। तुम्हारे चरणे असी अछियामी, बोली वो दुखेरा कथा। तो अभी मैं क्या, तो इन सारे दुखों का निवारण कैसे होगा? तुम्हारे चरणे असी अछियामी, जब आपके चरणों को मैं पकड़ लूंगा, आपके चरणों का जब मैं सहारा ले लूंगा, व्हेन आई विल टेक द शेल्टर अंटू योर लोटस फीट, फिर क्या होगा? बोली वो दुखेरा कथा, आपके चरणों को पकड़ के फिर मैं क्या करूंगा? हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के कष्ट जो है मैं यहाँ पर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही जो है प्रार्थना जीव भगवान से कर रहा है। एटलीस्ट कम से कम इतना तो हमें पता चल रहा है कि जो जीवन की जो 4 बड़ी प्रॉब्लम है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उनमें से देखो जन्म जो है वो भी हमने, जन्म हम हो चुके हैं, हम सब लोगों का बर्थ हुआ है? तो लेकिन उसका जो कष्ट है, वो कष्ट अभी हम क्या भूल चुके हैं। जन्म के समय हमने जो है कष्ट, क्या कष्ट पाया था, राइट। सो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अब उसमें देखो इन चारों में से क्या हुआ है ना, अभी हमने चारों में से केवल एक चीज को ही अभी हम फील कर पा रहे हैं। जो 4 प्रॉब्लम है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसमें केवल एक ही चीज को हम फेस कर रहे हैं। कौन सा है? जन्म हम फेस कर चुके हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि जन्म के समय हमने कितना कष्ट पाया, वो हम भूल चुके हैं, अभी याद नहीं है, राइट। फिर उसके बाद ओल्ड एज एंड मृत्यु, डेथ, अभी वो हमने फेस किया नहीं है, तो अभी हमें पता नहीं है कि ओल्ड एज में कितना कष्ट होता है। इसलिए कई बार जब वो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर हम हंसते हैं, जब वो मतलब चल नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, तो कई बार हम हंसते हैं, कभी हम डांट भी देते हैं कई बार, है कि नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता है वास्तव में कि बुढ़ापे में व्यक्ति को कितना कष्ट होता है।
राइट। और मृत्यु अभी तक हमने फेस नहीं किया, इसलिए उसको भी हमें अभी इमेजिन नहीं कर सकते कि मृत्यु के समय व्यक्ति को कितना कष्ट होता है। तो इट इज मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम कि एट द टाइम ऑफ डेथ कितना कष्ट होता है, 40,000 स्कॉर्पियन बाइट काटने के बराबर कष्ट होता है। 40,000 जो स्कॉर्पियन जो बिच्छू होते हैं, है ना, 40,000 स्कॉर्पियन। एक स्कॉर्पियन काटने से कितना कष्ट होता है, जिसको काटा होगा उसको पता होगा, हम तो वो भी रियलाइज नहीं कर सकते। राइट। 40,000 बिच्छू एक साथ काटने के से जो कष्ट मिलेगा, उतना कष्ट व्यक्ति को होता है मृत्यु के समय, लेकिन हम उसको फील नहीं किए हैं। तो अभी 4 में से अभी हम कौन सा फील कर पा रहे हैं अभी पर्टिकुलर टाइम पर? डिजीज। राइट। डिजीज हम सबको होता है। राइट। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मुझे आज तक कभी बुखार नहीं हुआ। हर व्यक्ति को बुखार हुआ है। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता मुझे आज तक कभी किसी मच्छर ने नहीं काटा, मच्छर ने तो काटा ही है। राइट। तो डिजीज तो अब सबको होते ही है, अलग अलग प्रकार के। तो ये है क्या, नाना विधा व्यथा, इसको बोलते हैं नाना विधा व्यथा। अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के क्या हो रहे हैं, मिजरीज, कष्ट हो रहे हैं, और हम फील कर सकते हैं। आपको और अगर फील करना हो कि वास्तव में व्यक्ति किस प्रकार से तड़प रहा है भौतिक जगत में, आप हॉस्पिटल जाइए, है ना, हॉस्पिटल जाइए आप, आपको पता चलेगा कि व्यक्ति किस प्रकार से तड़प रहा है व्यक्ति, है ना। कई बार तो इस प्रकार की सिचुएशन में होता है कि व्यक्ति मतलब प्रार्थना करता है कि भगवान इस प्रकार के जीवन से अच्छा है कि आप ले ही लो, है ना, तड़प तड़प के जीने से अच्छा क्या है, हॉस्पिटल में रह के तड़पने से क्या फायदा, अच्छा है कि ले ही लो। इस प्रकार से कई बार व्यक्ति प्रार्थना करता है कि जीवन उसका ऐसा हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग। सो इस प्रकार से है। तो अगर इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति सुख की आशा कर रहा है कि यहाँ पर कुछ सुख मिलेगा, तो वो मूर्ख है वास्तव में, बिकॉज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर इज नो हैप्पीनेस, है ना। ये सोचना मूर्खता है कि यहाँ पर खुशी है, खुशी है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भक्ति ठाकुर, पाए नैना बेधा बेथा, केवल कष्ट ही कष्ट है, दुखों का सागर है ये भौतिक जगत, दुखालय मसाश्रुतम, भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं। तो इन सारे दुखों का निवारण केवल एक ही चीज से होगा, वो क्या है, जब आपके चरणों का क्या ले लेंगे, सहारा लेंगे, तभी होगा, है ना। तो दुख के समय एक्चुअली वास्तव में हमने बहुत कष्ट पाया है, हम भूल गए हैं, है ना। तो उसका एक वीडियो है, ठीक है, तो आपको हम सच्चिदानंद प्रभु, यू कैन यू शेयर और शुड बी शेयर इन ग्रुप? ओके, प्लीज शेयर। तो सच्चिदानंद प्रभु आपको एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, और वो फिर आपको उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो बर्थ के समय, जन्म के समय हमने कितना कष्ट पाया है ना। तो उसको आपको फिर पता चलेगा, अभी हम जो भूल चुके हैं जन्म के समय। यस यस। And when the body is no more usable, then the body is finished and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आशा करते हैं सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और पता भी चला होगा आप लोगों को कि किस प्रकार से ये जो बर्थ है वो बहुत ही क्या है, पेनफुल है। जिस प्रकार से ये जो बेबी है वो 9 मंथ तक जो है माता के गर्भ में रहता है और बहुत ही मिजरेबल अवस्था में रहता है। जिस प्रकार से आपने देखा है ना कि अंदर जो है स्टूल है, म्यूकस है, वॉर्म्स हैं, वो उस बच्चे को खाते रहते हैं। तो आप देखो उल्टा रहता है वो बच्चा, कैसा रहता है, उल्टा। गर्दन नीचे रहती है, पैर ऊपर रहते हैं, ठीक है। अभी अभी अगर आपको बोला जाए कि गर्दन नीचे करो और पैर ऊपर करो, है ना, तो कितने समय तक आप रह सकते हैं इस पोजीशन में, है ना। है, है? आपको सिर नीचे करना है, पैर ऊपर करना है, हाउ मच टाइम यू कैन स्टे, है ना। 1 मिनट भी आप रह नहीं सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन बच्चा जो है 9 महीने तक उस अवस्था में रहता है, कितना पेनफुल होता है सोचिए। इसलिए उस समय आपने देखा ना कि अलग-अलग प्रकार के उसको फेस याद आया उस समय, देखना बच्चे ने बहुत प्रकार के सब फेस उसको रिमेंबर कर रहा था। वो सब उसको क्यों याद आ रहे थे? क्योंकि वो उस उतनी सारी योनियों को भोग करके आया है। अलग-अलग प्रकार के वो उसको योनि मिल चुकी हैं, इसलिए वो सब याद कर रहा था। और गर्भ जब हम सब लोग नेचुरली जब हम माँ तक गर्भ में थे, तो माँ के गर्भ में ही वास्तव में हमने भगवान भगवान ने उस समय हमें दर्शन दिया था, गर्भ में ही। क्यों, भगवान हृदय परमात्मा के रूप में है ना, तो उस समय भगवान ने हमें दर्शन दिए। और हम भगवान से प्रार्थना की कि हम जैसे बाहर निकलूंगा गर्भ से, जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं आपका ही भजन करूंगा, राइट। ये सब हमने प्रार्थना की और वही वैष्णव सॉन्ग आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो किसका भजन करूंगा, केवल आपके ही गुणगान को गाऊंगा बस। लेकिन क्या हुआ, भगवान से वादा किया हमने, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम भूल गए उसको, राइट। वो भूल गए हैं, इसलिए अभी भगवान को भूल गए और हम केवल खुद के कामों में लगे हुए हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, है ना। तो भगवान से जो हमने वादा किया उसको हम निभा निभा नहीं रहे हैं। जैसे मूवी में गाना सुना है ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, अभी हम भूल चुके हैं। वादा तो कर दिया भगवान से, लेकिन अभी कर दिए भूल गए हैं, है ना। तो जैसे शादी के समय में क्या होता है, जो 7 परिक्रमा जब लगाते हैं, 7 फेरे लगाते हैं, दूल्हा क्या करता है, क्या भाव से चलता है कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारी क्या करूंगा, सुरक्षा करूंगा, 7 जन्मों तक, है कि नहीं। तो वैसे ही हमारी सिचुएशन है कि भगवान से हमने वादा तो किया था कि जब बाहर निकलेंगे तो आपका भजन करेंगे, लेकिन हम भूल चुके हैं। दैट इज व्हाई वी आर सफरिंग दिस मैटर, राइट। इसलिए मैंने आपको बताया कि जन्म किस प्रकार से सफरिंग था, ताकि ये एटलीस्ट कुछ तो याद आया। चलो ठीक है, क्योंकि हम भूल चुके हैं ना वो, क्योंकि शरीर चेंज हो गया हमारा भी, है नहीं। क्योंकि हर 7 साल के बाद क्या होता है, हमारी जितनी भी अ, ये होती हैं मांसपेशियां, ठीक है, वो सब क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, राइट। तो अभय प्रभु, यू कैन शेयर द स्लाइड वंस अगेन। तो प्रभु जी शेयर्ड है, बस वो पिन कर देंगे तो हो जाएगा। शेयर्ड ही ऑलरेडी, पिन फॉर एवरीवन कर दीजिए प्रभु जी। जगत प्रभु हाँ हाँ ठीक है, ओके। प्रभु जी। या आई हैव डन। तो नेक्स्ट, हाँ तो ये हो गया, नेक्स्ट स्लाइड करो, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो जो अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाया उसी को बता रहे हैं। क्या, जननी जठरे छिलामा जखूना, जननी जठरे मतलब माता के गर्भ में, छिलामा जखूने बहुत प्रकार का, मतलब मैंने कष्ट सहा, है ना। एन विषम बंधन पासे, इस प्रकार से मैं जो है विषम बंधन, मैं फंस गया हूँ, बहुत ही कठिन बंधन में फंस गया हूँ। एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, वांछिले ए दासे ए दिन दासे। और आपने उस समय मुझे आप दर्शन भी दिए थे मुझे, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या हो गया है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, दर्शन देने के बाद फिर आप सडनली फिर क्या हुए, चले गए। तो देखो वही वाला यहाँ पर देख सकते हैं आप पिक्चर में कि भगवान ने गर्भ के समय हमें दर्शन दिए थे वहां पर। तो हम भगवान के दर्शन कर चुके हैं ऑब्वियसली, राइट। कहाँ पर, माता के जब हम घर में थे, लेकिन अभी हम भूल गए हैं। नेक्स्ट, फिर क्या बोला कि ताखुना भाबिनु जन्म पाइया करिबो भजन तब। तो हमने फिर क्या बोला था कि जब मैं वापस जब आऊंगा, जब बाहर निकलूंगा तो मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन क्या हुआ, जन्म होइलो, जैसे ही हमारा जन्म हुआ, पड़ी माया जाले, जैसे ही हमारा जन्म हुआ हम क्या हुए, माया के बंधन में फंस गए, ना होइलो ज्ञान लाभा। और फिर हमने कुछ भी ज्ञान अर्जित नहीं किया, ना भगवत गीता पढ़ी, ना हरि नाम जप किया, और हम क्या हुए, माया के जाल में फंस गए।
इसलिए आप लोगों को कार्तिक महीने में इनवाइट किया गया है और कुछ वाव दिया गया आप लोगों को। कम से कम इस बहाने आप क्या होगा, माया का जो जाल है उससे है बाहर निकलोगे, है ना। तो इसलिए आपको बोला गया है चलो खुद से तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती है तो कम से कम वाव लो एटलीस्ट। तो भगवद गीता पढ़ोगे, रोज एक श्लोक पढ़ोगे, रोज कुछ फिक्स नंबर राउंड जब करोगे, उससे क्या होगा, है ना, आप जो है माया के जाल से वापस निकल जाओगे। हाँ, देन आदरेरा छेले स्वजनेरा कोले। फिर क्या हुआ, जब बर्थ हुआ, बच्चे थे, फिर हम धीरे धीरे फिर हम जब बड़े हुए, जब बड़े हुए तो फिर क्या हुआ, स्वजनेरा कोले, है ना। फिर हमारे जो रिलेटिव्स हैं, है ना, उनके फिर स्नेह में हम फंस गए। हंसिया खाइनू कॉला, है ना, हंसते खेलते हमने जो है जीवन बता दिया, है ना। जनक जननी स्नेह स्नेहते भूलिया। और हमारा जो जन्म के समय हमने जितना भी कष्ट प्राप्त किया है वो क्या हुआ, वो हम भूल गए हैं। किसने भुला दिया, जनक जननी है, माता पिता का जो प्रेम है, उस प्रेम से क्या हुआ है, हम उस अपने बर्थ के समय जो कष्ट हुआ उसको हम भूल चुके हैं। संसार लागी लो भालो। और क्या लग रहा है, इतना ज्यादा प्रेम मिलता है कि हमें इस जो जगत है जो कि दुखालय है, लेकिन इतना प्रेम मिलता है तो क्या होता है, उस दुखालय से वो सुखालय में परिवर्तित हो जाता है। लगता है कि हाँ यहाँ तो राइट, बट देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस मैटर। फिर क्या है, क्रमे दिन दिन है, फिर धीरे धीरे जैसे क्रम दिन दिन जैसे आगे बढ़ते गए, डे बाय डे, तो क्या हुआ, बालक हुई है, फिर थोड़े बालक बने, पहले बच्चे थे, बढ़ रहे हैं ना अभी, है ना, धीरे धीरे फिर बच्चे हुए, खेले कूदे, है कि नहीं, स्पोर्ट्स में चैंपियन जीते, बैडमिंटन क्रिकेट, है कि नहीं, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला हमें, है कि नहीं। खेलुनु बालक सह, अपने फ्रेंड्स के साथ हम खेले, और किछु दिने ज्ञान उपजिलो। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद फिर जब कॉलेज में आए आप लोग, जैसे अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, अलग अलग कॉलेज में, कोई किट कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो ज्ञान उपार्जित कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान, लेकिन दिस इज ज्ञान, दिस इज नॉट विज्ञान। ज्ञान मतलब होता है मटेरियल नॉलेज, तो यहाँ पर ज्ञान लिखा है, मतलब मटेरियल नॉलेज उपार्जित कर रहे हैं। और पाठ पढ़ी अहर अहा, है ना, मतलब पूरा दिन भर केवल उसी में लगे रहते हैं। फिर नेक्स्ट और फिर क्या लग रहा है, विद्यार विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे। और इस प्रकार से जब थोड़ा सा ज्ञान जब मिला तो फिर हम क्या किए, ज्ञान अर्जित करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह, दूसरी जगह से तीसरा जगह, तरीके से करते हैं। कई बार होता है ना, कई बार लोग जाते हैं दूसरे कंट्री में, जाते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, है ना। कोई व्यक्ति फ्रांस जाता है, कोई जर्मनी जाता है कि नहीं, विद्यार्जन करने के लिए। भ्रमे देशे देशे, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, धना उपार्जन करी, पैसे कमाने के लिए। स्वजन पालन करी एक मने, भूलिनो तुम्हारे हरि। इस प्रकार से फिर क्या हुआ कि फिर इसके बाद जब हम खुद के बच्चों को जब पालन किया, तो फिर क्या हुआ, भूलिनो तुम्हारे हरि, और आपको फिर हम क्या हुए, धीरे धीरे भूल गए। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा समय बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, पहले बच्चे थे, फिर बालक हुए, फिर कॉलेज में एंट्री किया, फिर एक देश से दूसरे देश में गए, इस तरीके से बढ़ रहा है हमारा समय। और हम अभी भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं। अभी समय किस में जा रहा है, केवल हमारे खुद के पालन पोषण में जा रहा है, भगवान को अभी तक याद ही नहीं किया हमने। फिर क्या है, वार्धक्य एक होना भक्ति विनोद कांदिया का तरे अति। इस प्रकार से क्या है, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर अभी यहाँ पर रो रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इज वीपिंग, है ना, कांदिया कांदिया, है ना, रो रहे हैं और बहुत दुखी में हैं। और क्या बोल रहे हैं, ना भजिया तोरे दीना वृथा गेलो। आपको हमने कभी भजन नहीं किया, इस प्रकार से मैंने पूरा जो जीवन है वो पूरा बेकार गवा दिया। एक होने की हवे गति। तो इस प्रकार से मेरे जीवन की जो है वो क्या गति होगी, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो इस प्रकार से जो है बहुत ही दुख प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार से आई पास्ड माई लाइफ थ्रू आउट द लाइफ, देन व्हाट इज माई गति, है ना, व्हाट इज माई फेट, मेरा क्या गति क्या होगा। तो इस प्रकार से है। तो इसमें एक स्टोरी भी आता है कैलाश का स्टोरी आता है। तो उसमें क्या होता है, नारद मुनि एक बार क्या होते हैं, नारद जब वो कैलाश जब मतलब छोटे कैलाश जब छोटे थे, तो नारद मुनि एक बार, क्योंकि नारद मुनि को पावर है, वो ना वो मतलब एक योगी भी है तरीके से, भगवान भक्त भी हैं, तो वो उनको पावर है, वो एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट में जा सकते हैं वो, राइट। हम ट्रेवल नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशंस है। हमें अगर ट्रेवल करना तो एक बॉडी को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी बॉडी के साथ जा पाएंगे, राइट। लेकिन नारद मुनि सेम बॉडी के साथ कहीं पे भी जा सकते हैं वो।
तो एक बार विष्णु जी ने बोला कि नारद मुनि थोड़ा जाओ, है ना, लोग कितना सफर कर रहे हैं भौतिक जगत में, थोड़ा सा जाओ और जो जो कुछ भक्ति लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा इधर लेके आओ। तो नारद मुनि बोले ठीक है जाते हैं, लेके आते हैं। तो एक कैलाश एक व्यक्ति है उसके पास जाते हैं। तो कैलाश जो है बच्चा था, तो बोलता है कि कैलाश कैलाश, हाँ तुम भगवान तुमको याद कर रहे हैं। तो बोले तुम चलो वैकुंठ जगह में चलो, यहाँ तो यहाँ पे क्या करो, कष्ट पा रहे हो। बोले नहीं नहीं नारद मुनि, अभी कैसे जा सकता हूँ आपके साथ, अभी तो छोटा बच्चा ही हूँ, अभी तो पढ़ाई लिखाई थोड़ा करना है, आप कुछ समय के बाद आइएगा तब जाऊंगा आपके साथ। तो नारद मुनि बेचारे क्या करें, बोले कि ठीक है अच्छा मैं कुछ समय के बाद आऊंगा। अब बच्चा कैलाश जो है बड़ा हो गया, है ना, अब इसको कॉलेज में एडमिशन हो गया, है ना, कॉलेज में एडमिशन हो गया, किड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है अभी, ठीक है। तो फिर नारद मुनि फिर आते हैं, बोले, अरे कैलाश याद है तुम्हें, मैं कुछ समय के पहले आया था, तुमने बोला था कि जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए तब जाऊंगा तुम्हारे साथ, तो देखो मैं अभी आ गया। बोले अरे नारद मुनि, इतना मैंने पढ़ाई किया, अभी कॉलेज में बड़ी मुश्किल से एग्जाम करके मैं कॉलेज में अभी पढ़ाई कर एडमिशन हुआ है, अभी इतना मेहनत करने के बाद अभी आपके साथ चला जाऊंगा तो मेरी मेहनत तो बेकार हो गई ना, अभी क्यों जाऊंगा, थोड़ा सा कुछ फल तो भोगूंगा ना, तो आपको समय के बाद आइएगा। बोले ठीक है तुम जैसा बोलोगे वैसे ही करूंगा। कैलाश पर नारद मुनि फिर वापस चले गए। अभी कैलाश का क्या हुआ, कुछ जॉब लग गया, अच्छा प्लेसमेंट हो गया, जॉब लग गया। जॉब लग गया उसके बाद नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं कैलाश अभी चलोगे। बोले कि अरे इतनी मेहनत 4 साल पढ़ाई किया है मैंने, उसके बाद मेरा अभी जॉब लगा हुआ है, अब जॉब लगा हुआ है तो पैसे तो कुछ लूँ, पैसे लूंगा कुछ वो करूंगा तब तो जाऊंगा ना, इतनी मेहनत किया है अभी कैसे चला जाऊं। बोलेंगे कैलाश तुम बार बार मुझे धोखा दे रहे हो। तो नारद मुनि बेचारे परेशान, क्या करें, जितनी बार आते हैं हर बार कैलाश मना कर देता है। तो उसके बाद फिर बोलते हैं कि ठीक है भाई देखता हूँ, ठीक है जॉब लग गया तो पैसा कमा लो, कुछ समय के बाद आते हैं। तो कैलाश और बड़ा, फिर बढ़ते बढ़ते उसका शादी भी हो गया, फिर बच्चे भी हो गए उसके, है ना, पहले खुद बच्चा था अभी ये ऐसे बच्चे हो गए। तभी नारद मुनि फिर आते हैं, बोलते कैलाश क्या चल रहा है। हाँ बोलते कि कुछ नहीं, बस ये छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत परेशान करते हैं, इनको स्कूल में एडमिशन कराना है। बोलते ओहो कैलाश बोलते कैलाश तुम कब कब तो मैं ले जाऊं। बोलते कि अभी मेरे बच्चे तो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप समझते हो ना, अभी इनको थोड़ा सा एडमिशन कराना है, अभी अभी चला जाए तो उनकी पालन पोषण कौन करेगा, है ना, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है नारद मुनि फिर चले गए बेचारे, उनका भी एक परिश्रम है बेचारे, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। इस तरीके से फिर बच्चों का एडमिशन करा दिया। फिर वो नारद मुनि फिर आते हैं, बोलते हैं कि अभी चलोगे, बच्चों का एडमिशन हो गया तो चलोगे। बोले बच्चों का एडमिशन हुआ है, अभी कॉलेज का पैसा कौन भरेगा, है ना, तो मुझे भरना पड़ेगा ना। तो नारद मुनि फिर परेशान। इस तरीके से कैलाश का फिर जीवन व्यतीतता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना। फाइनली फिर क्या होता है, कैलाश मतलब भगवान का भजन नहीं कर पाता है ना। तो कैलाश इतना अटैच था, इतना आसक्त था, मतलब अपने घर से, है ना, फैमिली मेंबर्स बच्चे वाइफ सबसे, कि क्या होता है कि जब लास्ट के समय जब वो मतलब मरता है, तो उसी घर में वो जो है कुत्ता के रूप में जन्म लेता है कैलाश, है ना, डॉग के रूप में जन्म लेता है उसी घर में। तो उसके जो बच्चे हैं उसको उसको तो पता नहीं था कि ये जो है कुत्ता है जो मेरे पिता ही थे एक्चुअली, है ना, वास्तव में ऐसा होता है ना, कि हमारे जहाँ पर जितनी आसक्ति होती है, मटेरियल जितनी भी हमारी मटेरियल आसक्ति होती है, हमें बार बार उसी रूप में ही वही जन्म लेना पड़ता है। जैसे भगवत गीता में लिखा गया है, आप देखेंगे इंट्रोडक्शन के आगे कुछ पेजेस हैं, कलर प्रिंट है भगवत गीता में, आप देखेंगे वहां पर मेंशन है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा मीट ईटिंग करता है तो उसको भगवान कौन सी बॉडी देते हैं, लायन और टाइगर, है ना। जो व्यक्ति वो वस्त्र पहनने का शौक नहीं है, जो नेकेड अपनी बॉडी को एक्सपोज करने का शौक है, जैसे आजकल मूवी में होता है ना तो उनको नेक्स्ट लाइफ में भगवान कौन सी बॉडी देते हैं, लॉर्ड लॉर्ड फुलफिल देयर डिजायर, ओके यू वांट टू एक्सपोज योर बॉडी, ओके बिकम ट्री इन द नेक्स्ट लाइफ, है ना, जितना ज्यादा हमेशा एक्सपोज करते रहो, बिकम ट्री, आई फुलफिल योर डिजायर, so they become tree in the next life because tree doesn't have any claws। हाँ इस प्रकार से है। तो ये है, तो ही बिकम डॉग इन द नेक्स्ट लाइफ। तो फिर नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि जब आते हैं तो फिर वो भौंकता है, कैलाश भौं भौं करता है, अरे कौन है, बोले कैलाश कैलाश। बोले कैलाश कहाँ है। बोले वो भौंकता है और बोलता है मैं ही कैलाश हूँ। अरे बोले कैलाश तुम कुत्ते कैसे बन गए तो फिर वो
बोलते थे नारद मुनि बोलते देखो कैलाश में तुम्हें कितना समझाया है, कब से तुमने कम से कम 15 चक्कर कटवाए मेरे, मैं बार बार आता था, तुम बार बार भगा देते थे। अभी देखो तुम्हारी कंडीशन कैसे, तुम कुत्ते के रूप में जन्म लिए हो, अभी चलोगे कि अभी भी नहीं चलोगे तुम? बोले कैसे जाऊंगा, मेरे बच्चे हैं, उधर बीवी है, इसलिए मैं, कोई चोर डकैत ना आके कोई लूट ना ले, कोई हार ना कर दे मेरे घर वालों को, इसलिए मैं कुत्ता कुत्ता के रूप में घर की रक्षा कर रहा हूँ, ताकि कुछ जो चोर आएंगे उनको भौंके में बाहर भगा दूंगा। सोचो कुत्ता बन गया, ये कुत्ता बनने के बाद भी इसकी आसक्ति नहीं छूटी, इतना अटैच था ये, देखो समझ रहे बात को। मर गया कुत्ता बने, फिर भी बोले मैं रक्षा कर रहा हूँ कुत्ता बन के, सोचो। नारद मुनि बोले अच्छा कैलाश तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तो नारद मुनि क्या करते हैं, घर वालों को बोलते हैं अरे देखो देखो कुत्ता कुत्ता आया, कुत्ता तुम्हारे घर में कुत्ता बैठा हो, भगाओ भगाओ उसको। तो वो आते हैं वो डंडा लेके आते हैं, वो कुत्ते को मारते हैं, कुत्ता को मार देते हैं, राइट। इस प्रकार से कुत्ते को मार देते हैं। और फिर यही कुत्ता फिर जो है नेक्स्ट लाइफ फिर दूसरा लाइफ लेता है, फिर क्या बनता है, फिर सांप बनता है। कैलाश क्या बनता है, फिर सांप, सांप बन के फिर उसी घर में आता है वो। फिर नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि आते हैं, अरे यहाँ पर एक कुत्ता था, वो कुत्ता कहाँ गया, कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है यार, ठीक है। तो फिर वो जो सांप जो है वो ऐसा फन दिखाता है, बोले अरे ये कौन है, अरे बोले नारद मुनि मैं ही हूँ, अरे बोले कैलाश तुम सांप के रूप में कैसे आए? अब बोले कि मैं अभी यहाँ पर सांप के रूप में बैठा हूँ, ताकि कोई भी चोर आएगा तो उसको डसूंगा मैं, है ना, मेरे परिवार वालों को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। बोले तुम सांप रूप के तो कुत्ते रूप में थे, तुम कुत्ते के रूप में भी चलेगा, अभी तुम सांप रूप के रूप में आओ, फिर भी तुम नहीं छोड़ रहे हो अपना आसक्ति। फिर बुलाते हैं घर वालों को, बोलते हैं तो लाठी लेके आओ, तुम्हारे घर में सांप घुस गया है, काट लेगा। तो वो जो है लाठी लेके आते हैं मारने के लिए, और उसको जैसे मारने के लिए आते हैं तो थोड़ा बहुत पीटते हैं, उसके बाद बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ जाओ, वो मर गया, सांप मर गया, जाओ जाओ, भेज देते हैं वापस। बोलते हैं कैलाश अभी देखो, अभी तुम चलोगे कि अभी फिर तीसरा लाइफ फिर से लोगे तुम कुछ? बोले नहीं नहीं बस बस, अभी बस बहुत हो गया, अभी बस मुझे अभी ले चलिए, है ना, अभी ले चलिए। अभी कैलाश को क्यों समझ में आया, अभी तक समझ में नहीं आया था, अभी क्यों समझ में आया उसको? अभी इसको समझ में आ गया, क्योंकि वो सोचा देखो मैं कुत्ते के रूप में जन्म लिया, पहले मैं तो इंसान के रूप में था, नहीं इतना इनका टेक केयर किया, ठीक है, अभी कुत्ते के रूप में जन्म लिया, ठीक है, लेकिन ये लोग मुझे फिर भी मुझे मारने दौड़े, मैं रक्षा कर रहा हूँ, मुझे मारने दौड़े, फिर अभी सांप के रूप में भी मैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन वो मुझे ही मारने के लिए आ रहे हैं। तो ये जीवन किसी काम का नहीं है, जिनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ वही मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए बेटर है सब छोड़ो, आपके साथ ही चलता हूँ। तो सोचो तब जाके फाइनल उसको समझ में आया कि हाँ अभी भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा जीवन उसने गुजार दिया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है ना, इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन जो है हर स्टेप पे बढ़ रहा है, और हम जो है भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, भगवान को हम भूलते जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से टाइम तो हमारा बार बार हो रहा है। तो यहाँ पर एक आता है श्री मुकुंद माला स्रोत में, एक किंग कुलशिखर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा मेरा तो सारी स्क्रीन शेयर नहीं है यहाँ पर। तो वहां पर एक किंग कुलशेखर हैं, तो वहां पर वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी मैं यूथ हूँ, है ना, अभी मैं यूथ हूँ, इसलिए अभी क्या है बॉडी में एनर्जी है, तो अभी ही आप जो है, अभी अगर मैं शरीर छोड़ दूं तो अच्छा है, कम से कम मैं हरे कृष्ण नाम जप के मैं शरीर छोड़ूंगा तो कुछ तो अच्छा होगा। अगर बुढ़ापे में, जब मैं बुढ़ापे में मरूंगा तो उस समय क्या होगा, अभी तो उस समय मेरा गला चौक हो जाएगा, है कि नहीं, म्यूकस बाइल और एयर से मेरा गला चौक हो जाएगा, मैं तो आपका नाम ही जप नहीं कर पाऊंगा, तो अभी ही मुझे उठा लीजिए। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं। और श्री जी प्रभुपाद का एक बुक है ईशोपनिषद, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवात्मा किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है मरते समय। उसमें बोलते हैं कि वायुर अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम क्रतुष्मरा कृतमिश्मरा क्रतुष्मरा कृतमिश्मरा। उसमें वो बोल रहे हैं कि let this temporary body be burned to ashes and let the air of life be merged with totality of air. Now, my Lord, please remember all my sacrifice, and because you are the ultimate beneficiary, please remember all that what I have done for you. तो जीवात्मा से बोल रहा है कि अभी मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन जब मैं जिंदा था तो उस समय मैंने जितना भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपके लिए अगर कुछ अच्छा किया है, तो कृपया करके वो मुझे क्या कीजिए, वो मुझे उसको याद कीजिए। इस प्रकार से वो जो है प्रार्थना कर रहा है। तो देखो हम सब लोग इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत चैंटिंग कर रहे हैं, जो बुक रीडिंग कर रहे हैं, श्लोक याद कर रहे हैं, व्हाटएवर लैंप ऑफरिंग कर रहे हैं, तो लास्ट समय में वास्तव में क्या होगा ना, भगवान इन चीजों को याद करेंगे कि हाँ मानस पूर्ण कार्तिक मध्य में वाव लिया था 30 दिन तक, लैंप ऑफरिंग किया था, चैंटिंग किया था डेली,
मॉर्निंग चैंटिंग सेशन ज्वाइन करते थे, है कि नहीं? अभयपुर को भी ऐसे याद करेंगे, जगनपुर को याद करेंगे कि हाँ देखो कार्तिक महीने में ये वही लोग हैं, ये सब जिन्होंने कार्तिक महीने में वॉज लिया था, राइट? तो भगवान याद करेंगे वास्तव में। इसलिए भगवद गीता में श्लोक है, नेहा भी क्रम नासु अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हम थोड़ा सा भी अगर एंटर करते हैं तो वो हमें बड़े से बड़े डेंजर से क्या कर देता है, बचा देता है, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम जो अभी हम जो भगवान के लिए अभी हम दे रहे हैं। क्योंकि देखो इससे पहले हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था। समझ रहे बात को? जब बचपन था तो हमें कुछ ज्ञान नहीं था शास्त्र का, हम पढ़ नहीं सकते थे। और बुढ़ापे में भी हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, कुछ समय क्या हो जाएगा, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, हम देख नहीं पाएंगे, हम गीता नहीं पढ़ पाएंगे, हम जप नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? हम डांस नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ना बचपन में भक्ति कर पाए, ना बुढ़ापे में कर पाएंगे। तो यूथ लाइफ इज द बेस्ट एज, इट इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि यही यूथ लाइफ है जहां पर हमारे शरीर में क्या है, एनर्जी है। जब हम भगवद गीता पढ़ सकते हैं, हम मंदिर जा सकते हैं, हम धाम यात्रा कर सकते हैं, हम चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान के आगे डांस कर सकते हैं, है ना? कितनी सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? केवल इसी लाइफ इसी एज में ही कर सकते हैं, यूथ अवस्था में ही कर सकते हैं। दिस इज द मैच्योर स्टेज, है ना, परफेक्ट एज टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, है नहीं? तो इसलिए इस लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं गवाना चाहिए। एक एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाणक्य पंडित का नाम सुना है ना? चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक बार एक सेकंड भी अगर आगे बढ़ गया तो उस समय को आप अगर मिलियंस एंड मिलियंस गोल्ड कॉइन भी अगर स्पेंड करोगे तो भी उस सेकंड को वापस लेके नहीं आ सकते, यू कांट ब्रिंग बैक, राइट? तो अभी जो समय चल रहा है, हम जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ बस बोल दिया, वो समय चला गया। समय इस प्रकार से भाग रहा है। तो समय इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आप मिलियंस से मिलियंस गोल्ड कॉइन भी अगर उसको दोगे ना तो भी वो वापस नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रेसियस, टाइम इज वेरी प्रेसियस, राइट? ओके, इसलिए एक एक सेकंड, एक मिनट बहुत हमारे लिए बहुत कीमती है। तो इसलिए ये जो कार्तिक मंथ जो चल रहा है तो आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए, है ना? और इसको जो है अच्छे से चैंटिंग कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, ताकि ऐसा मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो आपको मिले। इस प्रकार से जो है इस सॉन्ग को हम गा के इसको खत्म करते हैं, ठीक है? सो इसको एक एक करके आप नेक्स्ट करते चले जाइए। आई एम स्टार्टिंग टू सॉन्ग। यस, सो भक्ति विनोद ठाकुर उसको गाए हैं, इसको हम गाते हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे असिया, पैनन विद व्याथा। भूलिया तुम्हारे संसारे असिया, पैनन विद व्याथा। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা, বলিব দুঃখের কথা। নেক্সট। জননী জঠরে ছিলাম যখন, विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, बांची लई दिन दासे, बांची लई दिन दासे। ताको न भाविनो जन्म पाइया, करिबो भजन पाव। जन्म होइलो पड़ी माया जाले, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, न होइलो ज्ञान लाभ, न होइलो ज्ञान लाभ। आदरेर छेले स्वजनेर कोले, हासिया काटे नो काला।
जनक जननी स्नेह भूलिया, जनक जननी स्नेह भूलिया, संसार लगी दो भालो, संसार लगी दो भालो। क्रम दिन लीने बालक होइया, खेलिनो बालक सा। और किछु दीने ज्ञान उपजिलो, और किछु दीने ज्ञान उपजिलो, पाठ पढ़िया हर पाठ पढ़िया हर। विद्यार गौरवे भ्रमि देश देशे, धन उपार्जन करी, स्वजन पालना करिए कमाने, स्वजन पालना करिए कमाने, भूली न तुम्हारा हरि, भूली न तुम्हारा हरि। भक्ति खोना भक्ति विनोद, कांदिया कतर आती, ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, एको ना की है बेगति, एको ना की हवे गति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद। कि मतलब बेसिकली आज के वैष्णव सॉन्ग में हमने जो क्या देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वास्तव में जो जीव है कैसे इस भौतिक जगत में आके सफर कर रहा है, कष्ट पा रहा है, और इतना कष्ट पाके भी वो जो है भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें जो ह्यूमन शरीर जो मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है। एक्चुअली लब्धवा सुदुर्लभम बहु जन्म संभवान थे, तो लब्धवा सुदुर्लभम, ये जो शरीर है ये बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर, इतना आसानी से मिलता नहीं है। भारत भूमि तो हैला मनुष्य जन्मजाल, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो भारत भूमि में जिन लोगों ने जन्म लिया है दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट पर्सन्स, दे आर वेरी, ये हमें समझना चाहिए, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमने भारत भूमि पे जन्म लिया। इसलिए क्या करना चाहिए फिर जिन लोगों ने भारत भूमि जन्म लिया, क्या करना चाहिए? व्हाट द एक्टिविटीज? जन्म सार्थक करी कर परोपकार, हमें खुद का जन्म सार्थक करना है। तो कैसे जन्म सार्थक करेंगे? यही सब करके, है ना, चैंटिंग करके, गीता पढ़ के, है ना, मंदिर मंदिर जाके साधु संग करके, ये सब अच्छे कर्म करना है, गलत कर्म नहीं करना है।
सार्थक करना है, देन करो परोपकार और दूसरों को भी बताना है, राइट? दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो चैंट कृष्णा एंड डिस्ट्रीब्यूट हरे कृष्णा. This is the principle. So make your life successful first and make others' life successful. This is Krishna consciousness. Okay. So thank you very much to all of you for giving your valuable time today. So we will meet again next Saturday and we will take another Vaishnava song. So hope you like today's song nicely and maybe learn some teachings from today's shloka. Body is the subject to all kinds of material tribulation. Just try to understand this simple philosophy. And so long he will be attached to sense gratification, he will be forced to get a body. Unless you are spiritually elevated and try to go to the spiritual kingdom. And this materialistic way of life means sense gratification. So you go on sense gratifying, you will have a certain type of body, and sense gratification will be everywhere. Either you become a dog or cat or man or elephant or tiger, you will have the sex facilities, eating facilities, sleeping facilities, and different things. Vishaya khalu sarvatosra. Visha means these four principles of material enjoyment. You will have everywhere. But Krishna Guru nahi mile bhaja hoya. But you cannot get Krishna and spiritual master. You can have facility for all these bodily pleasures, eating, sleeping, mating and defending, in any life. But Krishna and the spiritual master can be had in this life, in one form. Krishna Guru nahi mile. Janame sab pita mata pa. Very simple. In any birth, you will get a father and mother. Because without father and mother, where there is question of birth. Janame sakale pita mata pa. In every birth, you can get father and mother. Krishna Guru nahi mile bhajo hiya. But you should always remember that Krishna and spiritual master cannot be had in every birth. Therefore, that thing should be sought out. Where is Krishna? Where is spiritual? That is perfection. Ei rupe brahmanda bhramite kono bhagyavan. In this way, the living entities are wandering throughout the whole universe in different planets and different species of life. But somehow or other, if he becomes fortunate, then by the mercy of spiritual master and Krishna, he gets the seed of devotional service. And as soon as he gets the seed, if he waters, then it becomes sprouted, gradually grows. What is that water? Savan kirtan jale karaya secham. This is watering. You are hearing, you are chanting. This means watering the seed of devotional service. So take this devotional seed of devotional service. Sow in your heart and water it by hearing and chanting. You will see how happy you are becoming day after. As the plant grows, you become more happy. As soon as you develop a little love for Krishna, then a different path is open for you. This is fact. This opportunity is there. Anyone can accept it, but it is our misfortune that we do not accept it. The path is very simple. Anyone can accept it. Sarvadharman parityaja mamekam saranam bhaja. So it is our duty to explain that this is the real path. Now it is up to the people to accept it or not. Yes, so very nice. Thank you Sachidanand Guru for sharing this for lecture. So ये इसी टॉपिक से है, तो हम बता रहे हैं पूरी बात कि देखो माता पिता तो हमें हर जन्म में मिलेंगे हैं, राइट, बट गुरु कृष्णा केवल इस लाइफ में मिले हैं. गुरु कृष्णा केवल इस लाइफ में मिले, माता पिता तो हर जन्म में मिलेंगे, बट गुरु कृष्णा केवल इस लाइफ में मिले हैं. So
ये जो रेयर अपॉर्चुनिटी जो मिली इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए, है ना। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, है ना। केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से ही जो हमें भक्ति मिलेगी, है ना। इसलिए इस लाइफ को हमें बहुत सीरियस तरीके से लेना चाहिए, है ना। तो बहुत ही मुश्किल से हमें मतलब जो भी हो हमारा सुकृति हो, प्रभुपाद की कृपा से जो है आज हमें मतलब सही पाथ पे एक्चुअली हम आ गए हैं, राइट। तो इसको हमें अच्छी तरीके से इसको लेना चाहिए। जस्ट अ बिट। हाँ मोबाइल है ऐसे, ये अविनाशपुर रखी मोबाइल। हाँ तो इस प्रकार से, है ना। सो टेक दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी सिंसियरली एक्चुअली, है ना। ये जो हमें ह्यूमन लाइफ मिला है इसको बहुत तरीके से लेना चाहिए और ऐसा प्रयास करना है हमें, इस प्रकार से प्रैक्टिस हमें करना चाहिए कि नेक्स्ट बर्थ जो है हमें माता के गर्भ में ना आए, है ना। बैक होम, बैक टू गॉड हेड, जहां से आए हैं वहीं वापस चले। इस प्रकार से हमें भक्ति करना चाहिए, है ना। बार बार जन्म लेना, बार बार कष्ट पाना, ये क्या, ये तो आजकल है, मुक्तता है ना। वास्तव में सही चीज क्या है कि चलो इस बार जो है, इस बार मैं इस प्रकार से करूंगा प्रैक्टिस के, दोबारा से मैं इस जन्म में नहीं आऊंगा, ठीक है। जन्म सार्थक करी करो परोपकार, तो खुद का भी जन्म सार्थक होगा और बाकी सबका भी। बताते हैं कि जब एक फैमिली में एक कोई अगर शुद्ध भक्त बनता है तो उसकी फैमिली की 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। सोचो इतना प्रभावशाली है। आपकी अच्छी भक्ति करने से आपकी 14 पीढ़ियों का उद्धार होगा, राइट। तो आप चाहते हैं अपनी 14 पीढ़ियों को उद्धार करना चाहते हो, तो कैसे होगा? कुछ नहीं करना, बस खुद अच्छे से भक्ति करो, है ना, नाइसली ना। तो अगर आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो आपके कारण भगवान आपकी 14 पीढ़ियों को उद्धार कर देंगे। बिकम वेरी गुड डिवोटी ऑफ कृष्णा, ना। सो ना, दिस इज द प्रोसेस। तो गुरु कृष्ण की कृपा आपके ऊपर है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से उसको फॉलो करना है। ओके, सो इसको यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से हम मिलेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। So I will pray for all of you for your good health and spiritual advancement, so that all of you can become very good devotee. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai.